previous lecture I told you how to find the nth derivative of a function. Now today I will discuss some problems how to find the nth derivative directly. The question here, question number first, if y is equal to sine 2x and sine 3x, sine 3x find by n. It means find the nth derivative. So for solution, we have y equal to sine 2x sine 3x is equal to 1 by 2. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें यहाँ पे 2 sin 2x and sin 3x. We use the identity 1 by 2 sin a sin b, cos a minus b means 2x minus 3x, or minus cos a minus b means 2x plus 3x. We use the identity here 2 sin a sin b is equal to cos a minus b and minus cos a plus b. Simplify it. So 1 by 2 cos minus x, cos minus theta equal to cos theta, so we write here cos x and minus cos 5x. Now find the nth derivative. I mean differentiating n times, we get dn by means by n is equal to 1 by 2 dn cos x minus dn cos 5x is equal to 1 by 2 here cos ax plus n pi by 2 and minus 5 raised to power n and cos 5x plus n pi by 2. It is your answer. We use the identity here dn cos ax plus b is equal to a की power n cos ax plus b plus n pi by 2 ठीक है. ये आइडेंटिटी हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. वी यूज द आइडेंटिटी here directly for finding the nth derivative. So dn cos ax plus b is equal to a की power n cos ax plus b plus n pi by 2. Similarly here dn cos x में a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, so we write here 1 raised to power n, it means 1, तो cos x plus n pi by 2. यहाँ पे है dn cos 5x, 5 means 5 power n cos 5x plus n pi by 2. Now next one, if second question, if y is equal to sin square x and cos cube x find by n. देखिए जो भी आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है वहाँ पे sin a x प्लस बी या cos x प्लस बी एक्स है. स्क्वायर में कोई आइडेंटिटीज नहीं है या क्यूब में नहीं है, तो पहले पावर्स को हम लोग ब्रेक करेंगे यहाँ पे. सो फर्स्टली वी सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शन. तो फॉर सोल्यूशन वी हैव y is equal to sin square x cos cube x is equal to sin square x cos square x or into cos x, like this, is equal to 1 by 4 into 2 sin x cos x का whole square into cos x is equal to 1 by 4, ये sin 2x बना, sin 2x स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 2x और cos x is equal to 1 by 4 sin square cos 2. We use the identity cos 2x is equal to cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a. तो sin square a is equal to 1 minus cos 4x upon 2 और into cos x is equal to 1 by 8
कॉज एक्स मल्टीप्लाइड हो गया यहाँ पे, कॉज एक्स माइनस कॉज 4x एंड कॉज एक्स इज इक्वल टू 1/8 कॉज एक्स माइनस 1/16 2 कॉज 4x और इंटू कॉज एक्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, 1/8 cos x and minus 1/16. We use the identity 2 cos a cos b, cos a plus b means cos 4x plus x and plus cos 4x minus x, and simplified is equal to 1/8 cos x minus 1/16 cos 5x and minus 1/16 cos 3x. We use the identity. Now another derivative. So differentiating n times dn by is equal to by n is equal to 1/8 dn cos x minus 1/16 dn cos 5x minus 1/16 dn cos 3x is equal to 1/8 cos ax plus n pi by 2 and minus 1/16 5 power n cos 5x plus n pi upon 2 and minus 1/16 3 power n or cos 3x plus n pi upon 2. It is your answer. Thank you. Now next question number 3rd. If y is equal to e की power x sin cube x, find by n. For solution we have y is equal to e की power x and sin cube x. We use the identity sin 3a. Since sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. Simplified for sin cube a implies that sin cube a is equal to 3 sin a minus sin 3a upon 4. We put the value here. Y is equal to e की power x upon 4 into 3 sin x or minus sin 3x is equal to 1/4 3 e की power x sin x and minus e की power x sin 3x. Now for another derivative, I mean differentiating n times we have by n is equal to 1/4 3 dn e की power x sin x and minus dn e की power x sin 3x. We use the identity here, and dn e की power ax or sin bx plus c is equal to r power n e की power x sin bx plus c plus n theta, where r is equal to a square plus b square, r square a square b square, and theta is equal to tan inverse b upon a is equal to, we use the identity here, 1/4 3 ए ई की पावर ए और बी की वैल्यू दोनों की 1 और 1 है। कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू से। यहाँ ए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी 1 है, तो आर की वैल्यू हो गई यहाँ पे आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पावर n/2 ए की पावर एक्स और ये साइन ए एक्स प्लस ए एन और थीटा मीन्स टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो ये टेन इनवर्स 1/1 एंड माइनस ई की पावर एक्स
माइनस ए की पावर एक्स, और आर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रेज टू पावर n बाई 2 इंटू साइन 3x प्लस n, और थीटा मीन्स टेन इनवर्स बी अपान ए, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ए 1 है, तो 3 अपान 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4, 1 प्लस 1 तो ये 2 हो गया, 2 की पावर n बाई 2, तो 3 इंटू 2 रेज टू पावर n बाई 2 ई की पावर एक्स, और ये साइन एक्स प्लस एन, टेन प्लस 1 पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 माइनस ई की पावर एक्स 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 की पावर n बाई 2 और यहाँ पे हो गया साइन 3x प्लस 10 इनवर्स साइन 3x प्लस n 10 इनवर्स 3 इज इक्वल टू, इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं 1 बाई 4 3 इंटू 2 रेज टू पावर n बाई 2 ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस n पाई बाई 4 एंड माइनस 10 रेज टू पावर n बाई 2 ई की पावर एक्स, और ये साइन 3x प्लस n 3x प्लस n 10 इनवर्स 3, इट इज योर आंसर. Find the nth derivative of, next question, find the nth derivative of y is equal to 1 upon x square plus a square. This is an important question here. So for solution we have y is equal to 1 upon x square plus a square is equal to, पहले इसको फैक्टर्स करेंगे तो x प्लस आई ए एंड x माइनस आई ए इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन x प्लस आई ए, x माइनस आई ए, और माइनस 1 अपॉन x प्लस आई ए इंटू 1 अपॉन 2i a by partial fraction is equal to, now differentiating n times with respect to x, we have dn by means by n is equal to 1 upon 2ia dn ax minus ia raised to power minus 1 minus dn ax plus ia raised to power minus 1. We use the identity here, dn ax plus b raised to power minus 1 equal to माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n और अपान ax प्लस बी रेस्ट पावर n प्लस 1. ये आइडेंटिटी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. वी यूज द आइडेंटिटी फॉर फाइंडिंग द nth डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फैक्टर ax प्लस बी रेस्ट पावर माइनस 1. तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, उसको हमने लीनियर में पहले कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो लीनियर फैक्टर्स के फॉर्मेट में है, इसलिए हमने जो भी फैक्टर्स यहाँ पे होंगे लीनियर फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना, देन वी यूज द आइडेंटिटी हियर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ia, और यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल, और ए इज 1 हियर, so 1 की पावर n अपॉन ax यानी x माइनस आई ए रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल, और यहाँ पे a भी 1 है तो 1 की पावर n, और अपान में
एक्स प्लस आई ए रेज टू पावर एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 की पावर एन और एन फैक्टोरियल कॉमन है और एक्स माइनस आई ए रेज टू पावर माइनस एन प्लस 1 माइनस एक्स प्लस आई ए रेज टू पावर माइनस एन प्लस 1। ये ऊपर की वैल्यू कॉमन है, उसने बाहर लिया है, 1 की पावर एन 1 हो गया इज इक्वल टू 1/2 आई ए माइनस 1 की पावर एन फैक्टोरियल और ये वैल्यूज आ गई एक्स माइनस आई ए रेज टू पावर माइनस एन प्लस 1 माइनस एक्स प्लस आई ए रेज टू पावर माइनस एन प्लस 1। नाउ पुटिंग हियर substitution here, put x is equal to r cos theta and a is equal to r sin theta। ठीक है, तो implies that r square is equal to a square plus x square, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इनको हम डिवाइड कर दें तो tan theta is equal to a upon x, ये r sin theta upon r cos theta, sin upon cos ये tan बन गया, r से r कैंसिल, a upon x, tan theta is equal to a upon x, तो implies that theta is equal to tan inverse a upon x। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 आई ए माइनस 1 की पावर एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आर की जो पावर आर कॉमन होगा हम लोगों को यहाँ पे आर कॉस थीटा, तो आर की पावर माइनस एन प्लस 1 ये कॉमन हो जाएगा। एक से स्थान पर क्या लिखा आर कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस आई और यहाँ पे ए की वैल्यू आर साइन थीटा और रेज टू पावर ये हो गया यहाँ पे माइनस एन प्लस 1, फिर माइनस यहाँ पर भी ओवरऑल ये आर पावर माइनस कॉमन हो जाएगा, तो चाहे तो हम यहाँ से भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं, तो ये कॉस थीटा एन प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर एन फैक्टोरियल आर की पावर माइनस एन प्लस 1 और अपान में 2i a इन ब्रैकेट वी यूज़ द रिमूवर थ्योरम, तो ये कॉस एन प्लस 1 थीटा माइनस आई साइन एन प्लस 1 थीटा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस एन प्लस 1 थीटा और माइनस ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा आई साइन एन प्लस 1 थीटा is equal to -1 रेस्ट पावर n फैक्टोरियल और r की पावर माइनस n प्लस 1 और अपान में 2i a इज इक्वल टू 2i साइन n प्लस 1 थीटा। ठीक है, 2i से ये 2i कैंसिल हो गया, -1 की पावर n फैक्टोरियल और अपान में a और यहाँ पे हो गया ये साइन n प्लस 1 थीटा और r की वैल्यू सिंस r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू r साइन थीटा, तो r इज इक्वल टू a अपान साइन थीटा, तो पुट हियर r की वैल्यू a अपान r साइन थीटा रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर n फैक्टोरियल और साइन ऊपर जाएगा, तो साइन की पावर n प्लस 1 थीटा साइन n प्लस 1 थीटा और अपान e रेज टू पावर अपान में आएगा तो e रेज टू पावर n प्लस 2। ठीक है, इसमें हम लोग जो डिमोर थ्योरम यहाँ पर डिस्कस किया था मैंने इस पॉइंट पे, तो डिमोर थ्योरम फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ कि d cos थीटा प्लस i साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा और प्लस i साइन n थीटा। जो पावर्स होता है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाइड होता है।
एंगल के साथ में मल्टीप्लाइड होता तो यहाँ पे पावर क्या था -n+1, एंगल के साथ मल्टीप्लाइड हुआ, cos माइनस थीटा को cos थीटा होता है तो यहाँ पे cos थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन तो इसलिए प्लस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पावर cos माइनस थीटा को cos थीटा है, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस बार मल्टीप्लाइड तो इसलिए ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ये cos के टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो गए, साइन के टर्म्स 8 हो गए, इसलिए 2i साइन n+1 थीटा हुआ, 2i से 2i कैंसिल हो गया। ठीक है, अब स्टेप जो भी आगे बचा, आर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया हुआ है, a इक्वल टू आर साइन थीटा, तो आर इक्वल टू क्या होगा a पान साइन थीटा, आर के स्थान पर यहाँ पे a पान साइन थीटा रेस्ट पावर -n+1 हुआ। अब इस साइन को ऊपर ले जाए पावर पॉजिटिव हो जाएगी, साइन पावर n+1 थीटा a अपान में आया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक a नीचे है तो ये n+1 के स्थान पर n+2 हो गया। ओके, थैंक यू।